Good morning, friends, and once again, welcome from sharestradingschool.com. Today, 25th October 2016, Nifty. We will just quickly analyze daily and weekly formation first, and then we will proceed with intraday analysis. Daily chart, yesterday we have said that Nifty V is trading around this trend line, and unless Nifty crosses this trend line, we will not think of going long. Yesterday market opened around this trend line. It has actually tried to cross this trend line, creating a high of 8,736.95, and then it closed below that trend line. So almost a neutral day. As we said, market will be in consolidation because there is a strong support of 20 as well as 50 EMA. But this trend line will act as a resistance, and unless Nifty crosses this trend line and closes beyond that trend line, then we will not think of going long. We will not design a strategy because it won't give us a much yield. 8,709 opening and 8,708 closing. So exact almost open and close. This is a doji formation. When market open and close at almost same level, then it is called as a doji. And when doji formation takes place, then that is a time wherein you will consider that resistance or support has acted. That area basically actually goes against the trend. So if in case doji forms, अगर doji form होता है जहां पे open और close same होता है, ये रेजिस्टेंस पे अगर आता है तो अगला दिन बेरिश डे होने के चांसेस होते हैं, प्रोवाइडेड उसके पहले मल्टीपल बुलिश बार रहनी चाहिए. यानी जब बुलिश ट्रेंड हो और ऐसे में डोजी फॉर्मेशन आए तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, क्योंकि ओपन और क्लोज का सेम रहना ये बताता है कि बायर कंफ्यूज्ड है. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे थे बुलिश ट्रेंड होता था और ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज सेम है, ऐसे में नेक्स्ट डे बेरिश डे हमने देखा है. यहाँ पे भी जब आप देख रहे हो कि कई बार मार्केट ट्रेंड सीधा चल रहा है और ऐसे में ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, सो बेरिश डे हमने देखा है. ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 टाइम यू विल सी दैट मोर देन 80 टाइम दिस हैपेंस. सो डोजी फॉर्मेशन अगर क्रिएट होता है, जैसे अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मल्टीपल 5-6 बुलिश बार्स है, और ऐसे में ये जो डोजी हुआ ओपन था उस दिन 7,717 और क्लोज था 7,716. सो ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम है. अगले दिन हमने बेरिश डे देखा है. सो बेसिकली जब डोजी क्रिएट होता है तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल होती है, और ये डोजी वहां क्रिएट होता है जहां पे रेजिस्टेंस हो या जहां पे सपोर्ट हो. सो ये रिकन्फर्मेशन होता है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का. सो टुडे फॉर्मेशन ऑफ दिस ओपन एंड क्लोज डोजी is showing us that trend line is really a very important trend line, and price is respecting, market is respecting that trend line. But then for that, as I said before, that doji day there should be a strong bullish days or strong bearish days, then and only then it will be called as a trend reversal. Now in this case we can see that there was a consolidation, and this consolidation actually justifies that this consolidation will lead to again consolidation only. So basically this doji, which we generally should take it as a trend reversal day, but there is no trend, so what will reverse? Unless there is a trend, then there will be we can say that there will be a trend reversal, but we are in a consolidation. So today again this 20 level will reconfirm this support. So we will say that 20 or 50, probably because of doji we may see that there will be as expected correction or more bear control in the beginning probably, but then there is no clarity. 8,662 will remain intact, 50 EMA. If Nifty closes below that, then support has breached. If Nifty close above this doji's high, that is yesterday's maximum attempt which market had created, should cross today, that is 8,736, and close much beyond that, then we will say that trend line is breached. So probably today will be a day of decision. आज अगर मार्केट 6,662 के नीचे जाके क्लोज हो तो ये दोनों जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 50 और 20 एक ही जगह पे है ऑलमोस्ट, ये टूट गए तो एटलीस्ट आगे जाके बेयर्स इसको नीचे 100 के लेवल पे ले आ सकेंगे.
या तो फिर ये कल का जो हाई कोशिश हुआ था ये लेवल अगर वापस क्रॉस होता है 8736, तो कंफर्टेबली अगर हम बोलते हैं 8750, थोड़ा मार्जिन भी देते हैं आज, 8730 के ऊपर क्लोज होता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा है। सो इसका मतलब अगेन आज डोजी फॉर्मेशन की वजह से हमें वेट करना होगा। सो निफ्टी का हमारे लिए अगेन कंसोलिडेशन का सिग्नल है एंड वेटेज वॉच स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी। नाउ इफ आई सी इंट्राडे चार्ट, आई हैव एक्चुअली प्लॉटेड निफ्टीज फ्यूचर चार्ट हियर। 30-minute chart, if I'll show you, in 30-minute chart we have actually tested a support at 20 EMA. 150-20 is intact. Last correction, last three half an hour correction, यानी 1.5 घंटे का कल का जो लास्ट का करेक्शन था, ये करेक्शन एक्चुअली लेते हुए वॉल्यूम काफी बड़ा है। सो ये थोड़ा सा डरा रहा है कि ये नीचे आते टाइम अगर ये वॉल्यूम बड़ा है, इसका मतलब मार्केट बंद होने के आज 1.5 घंटे में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद किया है और वो इस मार्केट से बाहर रहना चाहते हैं। सो इसका मतलब सिंपल है कि कल जब मार्केट में थोड़ा भी बुलिशनेस आया था 8748 के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन 20 के ईएमआई को इवन हाफ एन आवरली में भी इसने नहीं तोड़ा। सो 20 का ईएमआई काफी स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। ये एरिया आप देख सकते हैं, इसको हम जबरदस्त इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मान रहे हैं। ये लेवल टूटना काफी मुश्किल होगा क्योंकि पास्ट में भी इसने टूटना मुश्किल हुआ था। सो 8660 जो हमने पहले ही बात करी थी, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसने इंट्राडे में भी कई बार सपोर्ट दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये लेवल जब तक नहीं टूटता है हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। और ये हाई जो कल का एस्टेब्लिश हुआ था जिसके बाद प्राय लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, उस लेवल को आने के बाद शायद वापस थोड़ा सा डर लगे और इसके बाद वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। सो 8750 की ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। सो हमें फिलहाल ये लेवल टूटने के लिए वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग हाफ एन आवरली में बुलिश है, लेकिन आर्ली चार्ट में आप देख रहे हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्मेशन है। 20 का एवरेज 100 के एवरेज के ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे 50 का एवरेज है। सो ये उल्टा पुल्टा पैटर्न है और ये उल्टा पुल्टा यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन का कंप्लीट सिग्नल है। डेली चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट बुलिश है, आर्ली चार्ट डिस्टॉर्टेड है। सो मार्केट ऑलमोस्ट उस पैटर्न में आ रहा है, बुलिशनेस में आ रहा है। हमें टाइम देना पड़ेगा, 8750 की लेवल तोड़ने दो, मार्केट को कंफर्टेबल रहने दो उसके ऊपर, उसके बाद हम इसका फायदा उठाएंगे। सो निफ्टी ट्रेडिंग में हमें अगेन एक दिन और शायद देना पड़े, वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी लेनी होगी। बैंक निफ्टी, हमें कई लोगों ने बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया है यूट्यूब के थ्रू, तो थोड़ा सा मैं क्विकली बैंक निफ्टी के थ्रू लेके जाता हूं आपको। बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली looking at weekly bank nifty formation, then I'll take you to the daily chart as well. If you see again same pattern, 100, 50, 20 and price, so all these averages are in proper set. Price is above 20, so comfortably we are in bullish pattern. Price has tested a support at 20 EMA, so again this is reconfirmed that correction is over. दिस फॉर्मेशन, ये जो बार आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली पिवट रिवर्सल बुलिश बार, क्योंकि इसका हाई प्रीवियस बार के हाई के ऊपर है, इसका लो प्रीवियस बार के लो के ऊपर है और क्लोज काफी कंफर्टेबली इस हाई के ऊपर हो चुका है। सो दिस इज अ पिवट रिवर्सल बुलिश बार व्हिच हैज फॉर्म्ड इन लास्ट वीक, सो दिस इज स्ट्रांग बुलिश सिग्नल। सो प्रोबेबली दिस करेक्शन इज ओवर एंड बैंक निफ्टी इज गिविंग अ क्लियर कट सिग्नल ऑफ बुलिशनेस, wherein this 20 level, 20 EMA has acted as a support. But again, I have plotted even Fibonacci. I have taken a lowest low of 28 February's week and high which recently formed in the month of September. So this low and this high, considering this as a one wave, we have tested a support at 23.6% retracement, that is 18,884. So around 18,900 के आसपास हमने जो सपोर्ट लिया है, यही सपोर्ट प्रीवियस एक्यूमुलेशन 20 EMA एंड फिबोनाची, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो 18,900 की लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 19,800 के आसपास फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है। सो ये बुलिश पैटर्न है, इसको थोड़ा सा मुझे ये आई कुड सी दैट दिस इज समथिंग लाइक रिग्रेशन चैनल। सो एक क्विकली मैं इसको रिग्रेशन चैनल प्लॉट करके देखता हूँ। ये हाई हमने स्विंग का ले लिया और यहां से इसको प्लॉट किया। सो ये फॉर्मेशन बनता है जो एक चैनल फॉर्म की तरह दिखता है, जो
क्लियर कट है कि ऊपर का हाई इसका फिक्स है और नीचे का लो का सपोर्ट लेवल भी फिक्स है। सो ये चैनल ब्रेकआउट भी हुआ है और फिलहाल हम लोग उसके बियॉन्ड है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल इसके लिए एक छोटा सा ये हफ्ता काफी क्रुशियल माना जा सकता है। इस लाइन के नीचे आके ये हफ्ते बंद नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब फिलहाल हम लोग इस चैनल के यानी हमने ये वीक का हाई लिया है, जो वीक है 4 सितंबर का जो हाईएस्ट हाई है, और लास्ट वीक का हाई लिया है, और उसको जोड़ के अगर आप लाइन निकालोगे तो नीचे वाली ये जो लाइन है ये अपने आप पैरेलल लाइन प्लॉट होती है। आप देखेंगे तो इवन लो को जोड़ेंगे ये 2 वीक के तो इस लाइन को पैरेलल लाइन हो जाएगी। अगर इवन क्लोज को भी जोड़ेंगे तो भी पैरेलल लाइन एस्टेब्लिश होगी। सो ये चैनल फॉर्मेशन दिख रहा है। ये हफ्ता इसके ऊपर क्लोज हो तो हम अगला टारगेट हमारा बना रहे 20,575। सो बैंक निफ्टी बुलिश है, हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा और ये स्टॉप लॉस बेसिकली 20 के ईएमआई के नीचे लगाना है। ट्रेंड स्ट्रांग बुलिश लग रहा है, काफी 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए डिफरेंस है, लेकिन अगर उसको रिड्यूस करना है, स्टॉप लॉस को कम करना है, तो हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। ऐसे में 20 का ईएमआई ये इंटर हमारे लिए आता है अराउंड 19,500 में, तो थोड़ा सा हमने हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर लेने के लिए डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट किया। 19,500 को स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। अगर करेक्शन आता भी है तो इस लेवल पे इसमें सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। सो हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है 19,500 की स्टॉप लॉस के नीचे। याद रखना इवन 50 का लेवल भी सपोर्ट लेके वापस बाउंस हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप ज्यादा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तो 50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो 20 का स्टॉप लॉस लगाना भी जायज रहेगा। सो हमारी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग की रहेगी। अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे तो हम लोग जो सेफ है, वो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो 19,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उनको ज्यादा चाहिए तो वो 50 के एवरेज को स्टॉप लॉस लगाए। हो सकता है कि ये चैनल को सपोर्ट लेने के लिए नीचे टेस्ट करने के लिए आए, यहाँ पे सपोर्ट करे और फिर बाउंस हो। सो ऐसे में अगर हमारा ये स्टॉप लॉस 20 का हिट होने का चांसेस है, लेकिन 50 का स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम है क्योंकि ये चैनल के फिलहाल नीचे है। इसके नीचे अगर आ गया तो इतनी गारंटी है कि वापिस ये ऊपर नहीं जाएगा। सो इसका मतलब 50 का स्टॉप लॉस ये प्रोबेबिलिटी देगा, हाई प्रोबेबिलिटी देगा सक्सेस की। 20 का स्टॉप लॉस शायद हिट होने के चांसेस होंगे, लेकिन करेक्शन अगर आता है बैंक निफ्टी में तो ये करेक्शन चैनल को सपोर्ट टेस्ट करने के लिए होगा और उसके बाद वापस ये ऊपर जा सकता है। सो आने वाले पीरियड में स्टॉप लॉस को हिट किए बिना सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई पे यानी 20,500 पे जाने के चांसेस है। सो हमने ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस करे, मेरे ख्याल से ये आपको कंफर्टेबल लगे होंगे। मैंने आसान करने की कोशिश करी। इसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी, आपको ये लाइक करते हैं आप तो सब्सक्राइब करें, आपको क्वेरी होगी तो आप प्लीज क्वेरी लिखें। हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज को आंसर देने की। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।